My pranams to all elder monks sitting before me. My love and respects to all brother monks, the Mataji, nuns, and the speakers on the stage. This is the last session of the first day. The subject is 125 years of the Ramakrishna Mission, a journey together in Seva and Bhav Prachar. As we all know, the Ramakrishna Mission started formally 125 years ago. But as far as Seva, Bhav and Prachar is concerned, that is today's topic, I think we should go back a little more. That is, let us start at least from the Dakshineshwar, where mother was doing Seva intensely, and Seva was creating a bhava, particular emotion. And she was not doing prachar as such. A small, tiny room. Ramakrishna was, Bhagavan Sri Ramakrishna Dev was doing prachara. Again, little bigger room. And he was not doing a designated seva. But he was doing all prachar only. As far as the Swami Vivekananda is concerned, that time Narendra, he was neither doing seva nor prachar. But Swamiji had said, if I get an opportunity, I will do what I heard from my Guru, Thakurji, and spread the message all over the world. So that was in future. But the Seva, Bhav and Prachar, not in seed form, the expressive form, we see from Dakshineshwar. This little grown up, taken a wider shape in Kashipur, and then little stops, then Varanagar Mutt, and finally we come to Belur Mutt, where we are sitting in this campus. Here it has taken the full form, a role model not for only India, but for the whole world. Swami just said, the message will go from this Belur Mutt, will enlighten the whole world. So, the Seva, Bhava and Prachar is it's a Sanatan principle. What is that? That Sanatana Dharma, Shashvata Dharma, Sanatana means Shashvata, eternal. This eternal Dharma that Sri Ramakrishna preached through his Vani and through his actions. Why we are attracted to Ramakrishna? हम लोग जो रामकृष्ण देव के पास आए थे, क्यों आए? कुछ कारण तो होगा। वो क्या कारण था कि हम श्री रामकृष्ण देव की ओर आकर्षित हुए? शुरू में हो सकता है विवेकानंद जी की ओर से आए, बाद में रामकृष्ण देव, फिर माताजी भी हैं। वही वी आर, कुछ तो सीड्स होंगे हमारे पीछे, कुछ संस्कार तो होंगे। और इसी कारण हमें वो भाव अपने लगे और इसलिए आए और यहीं के हो गए। उसी प्रकार से आप भी you have come here to Ramakrishna and become the Ramakrishna's son and daughters. As we are son and daughters of Ramakrishna and Mataji,
In the same manner, you are also son and daughters of Ramakrishna and Mataji. Seva and Bhava Prachar. What is Bhava? This is an inclusive, all inclusiveness. Positive. Our Gita is all positive. This shloka is positive. Our Upanishads are all positive. As Tagore has said about Swamiji, in him everything is positive and nothing is negative. So whatever Sri Ramakrishna said, whatever Mataji has said, as Swamiji has said, it was all based upon the eternal values, principles, Siddhanta, etc. of the Sanatana Dharma. So India represents these ideas. Our country represents these ideas. Everything is positive. That's why we can say, whole world is ours. Mataji has said, my child, nobody is stranger. We say we accept, not tolerate. We accept everybody. We accept everybody and we reject none. So this kind of acceptance is the bhava of Sri Ramakrishna. And of course, bhava of Sanatana Dharma. When we read Vachanamrita and Lila Prasanga, in which Lila Prasanga, Thakur has said so many things, and Saradanji Maharaj has beautifully explained those things. Vachanamrita, mostly Ramakrishna's Upadesh is there. तो हम जब सुनते हैं कि ये जो आइडिया है, ऋषियों का धर्म सनातन धर्म है, अनंत काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार साकार सभी प्रकार की पूजाएं हैं, ज्ञानपथ भक्तिपथ सभी हैं। अंत में कहते हैं अन्य जो संप्रदाय हैं वे आधुनिक है, यानी अभी के हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे। वे नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, चैतन्य अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर के जो, पता नहीं, हम तो छोटे थे, इतने स्पष्ट रूप से उस भाव को हम नहीं जानते थे, लेकिन जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे हम इस भाव को अधिकतर ग्रहण करते हैं। यह सनातन भाव है, ऋषियों का धर्म, सनातन धर्म अनंत काल से है और अनंत काल से रहेगा, ऑल इंक्लूसिव। तो जब हमने ठाकुर जी के वाणी सुनी, उनके विचार सुने, पढ़े, अध्ययन किया, तब ऐसा लगता है कि ये कुछ अपनी बात है, सहजतया ग्रहण होती है, सरल है। ऋषियों की भाषा एकदम सरल है, जिसमें यूनिकनेस, ओरिजिनिटी है। एक प्रकार का ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से यह लॉजिकल है और अनुभव से आई है, केवल बुद्धि से नहीं। ये अनुभव की बातें हैं। जब अनुभव की बातें होती हैं तभी वह सनातन शाश्वत होती है। इसी कारण जब श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अनुभव की बातें हैं। जैसे भगवद गीता है, ये हजारों साल हो गए, अभी भी हमें उनके उपदेश मोह लेते हैं। यानी अभी भी लगता नहीं है कि हमने उस सभी भाव को पूरी तरह से ग्रहण किया है, क्योंकि वो इटर्नल है, शाश्वत है। उसका महत्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उसका क्षय होने वाला है।
जब श्री रामकृष्ण तो कहते हैं भक्ति ही सार है और सच्चे भक्तों को कोई चिंता की बात नहीं होती है, न कोई से भय होता है। भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होगा, भविष्य क्या है, अभी क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, इस प्रकार की भय, इस जीवन की चिंता मरने के बाद का भक्त के लिए नहीं है, अभक्त के लिए है। भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको पकड़ा है, भगवान ने उनको पकड़ा है, गर्दन पकड़ी है। श्री रामकृष्ण बिल्ली का उदाहरण देते हैं। ऐसे बिल्ली होती है, अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ती है, बच्चा बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसे मुझे माँ ने पकड़ा है। लेकिन वही बच्ची, इस श्री रामकृष्ण के वचन है, श्री राम जी कहते कि जब वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसमें किसी प्रकार की माया नहीं होती है, न कोई ममता होती है, प्रेम होता है, कुछ नहीं, क्योंकि वो भक्ष्य है, खाने की चीज़ है उसके लिए। इसलिए हमारा जो संबंध है भगवान के साथ वह ममता का है। उन्होंने हमें स्वीकारा है, अपनाया है। फिर वे जब कहते हैं कि उनके कान अत्यंत सचेत हैं, माने उनको सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हमने इतनी प्रार्थना की, ठाकुर जी को बार बार पूछते हैं भक्त लोग, वचनामृत में उसका उल्लेख आता है कि उपाय क्या है। तो उपाय क्या है? तो श्री रामकृष्ण तो कहते हैं उपाय है कि साधु संग और विश्वास, शरणागति, ये सब बताते हैं। तो ये सब उपाय जो हैं, ये हम जब प्रार्थना करते हैं, दो बातों पर उन्होंने, जब भी पूछा गया उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा है उपाय तो बहुत सारे हैं, उसका उल्लेख वचनामृत में है, लेकिन प्रार्थना और साधु संग, इन दो बातों पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। क्योंकि हम कर सकते हैं, साधारण मनुष्य कर सकता है, उसके लिए विशेष कुछ तैयारी की जरूरत नहीं होती, हो ही जाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपसे आप हो जाता है। जब आप आश्रम में जाएंगे, इसलिए आश्रम में जाना चाहिए, घर में साधु संग नहीं होता है। घर में आसक्ति के कारण बहुत होते हैं, ममता के कारण अनेक होते हैं। वो हमारा है, सब हमने रचा है, हमने उसको तैयार किया है, तो वहाँ आसक्ति के कारण बहुत होते हैं। लेकिन आश्रम में नहीं होते हैं। हमारे जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वी हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ देम एंड दे हैव आल्सो फॉरगॉटन। वो हम क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, वो क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं उसका। दे आर फाइन इन देयर ओन प्लेस, वी आर हियर, नाइस, नो प्रॉब्लम, इजंट इट। लेकिन ऐसा घर में रहते हुए नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी ने भक्तों को वीर भक्त कहा है। ये वीर भक्त है, आप लोग वीर भक्त हैं, बहादुर हैं। इतना बोझा आसक्ति का, ममत्व का, चारों ओर आपसे ममत्व घिरा हुआ है, ममता से, आसक्ति से घिरे हुए हैं आप, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं कि ठाकुर जी के पास आने का, उनके दोनों पैर पकड़ने का। एक पैर से, एक हाथ से एक पैर पकड़े, जिससे ठाकुर जी हमारे पास रहें। लेकिन होना चाहिए दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़े हैं। बहुत कठिन है, लेकिन इसका प्रयास जब आप रामकृष्ण संघ से जुड़े हुए होते हैं तो अधिक होता है। वो सब सुन रहे हैं, आपकी प्रत्येक प्रार्थना उन्होंने सुनी है, आपने जो कुछ भी किया है उनके लिए सुनी है उन्होंने। उनके कान अत्यंत सचेत हैं, वे सब कुछ सुनते हैं। उनको जितनी बार पुकारा गया है उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। वे एक न एक दिन अवश्य दर्शन देंगे। कितनी आश्वासक वाणी है, आप उसका विचार करिए।
ऐसा कोई तो बोलने वाला चाहिए, एक अधिकारी व्यक्ति। अवतार वरिष्ठ रामकृष्ण तो ये बोल रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। कम से कम मृत्यु के समय तो वे निश्चित ही दर्शन देंगे, आशा है हमारी कि नहीं। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, कि नहीं, हमारे अवगुण तो बहुत है, दोष, लेकिन उसके ऊपर मन मत करो, उसका विचार मत करो, कि नहीं। आप तो समदर्शी हैं, हम कैसे भी हो हमें पार करा दीजिए। सूरज का सुंदर भजन है। और वे कहते हैं कि एक इतनी अद्भुत बात है, इतनी स्पष्ट रूप से शायद ही हमने किसी सुनी हो, जो हम भगवान श्री रामकृष्ण देव से सुनते हैं। वे कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, जैसे गीता में बार बार आता है ये बात आती है। मैं सत्य कह रहा हूँ, शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि सचमुच ईश्वर के दर्शन मिलते हैं। हमारा सभी आधार तो वेद ही है, वेद तो प्रत्यक्षानुभूति है। उन्होंने आत्मा का दर्शन किया था, ब्रह्म दर्शन किया, ब्राह्म स्थिति का वर्णन है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति गीता कहती है। कितने प्रकार से हम वेदों में पढ़ते, स्वामी जी का कर्मयोग उसका प्रारंभ ही ऐसा ही है। पौरात्य दर्शन एक ही बात बार बार कहता है और घुमा फिरा कर स्वामी ने वही बात कही है 5 सेंटेंस में। दे केवल ओनली टॉक ऑफ मुक्ति, बंधन से मुक्ति, मूर्खता से मुक्ति, मोह से मुक्ति, नहीं, सभी प्रकार से निगेटिव जो बातें हैं उन सबसे मुक्ति, इसको तो मुक्ति कहते हैं। जब हम मुक्त होते हैं तब हम भगवान के पास होते हैं। बंधन हमको पकड़े रहते हैं, हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, न मन से जा सकते हैं, न शरीर से जा सकते हैं। आगे कहते हैं जिस प्रकार इस समय यहाँ बैठकर हम बातें कर रहे हैं, उसी तरह उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, उनके साथ वार्तालाप भी किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने को पूरी तरह समर्पित कर देना। माँ तो माँ बोई आमार आर क्यों नहीं। ठाकुर जी की प्रार्थना बहुत सुंदर है। माँ तुमको छोड़कर हमारा इस संसार में कोई नहीं है। नानक जी कहते हैं इस जगत में कोई नहीं अपना, लेकिन ये लोगों को कहने की बात नहीं है, लेकिन अपने मन में तो रखने की बात है। हम तो कह सकते हैं आप तो सब लोग भक्त हैं, मुमुक्षु है, आप तो केवल एक नागरिक नहीं है, नागरिक तो है ही, लेकिन उसके अलावा और कुछ है। आप तो मुमुक्षु है, मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, साधक हैं, उपासक हैं, भक्त हैं। तो इसलिए ईश्वर दर्शन की इच्छा है आप में, इसलिए तो आप श्री रामकृष्ण देव के पास आए हैं। मुक्त होने की इच्छा है, इसलिए तो आप रामकृष्ण देव के पास आए हैं। नहीं तो ऑप्शंस तो बहुत है आपके पास, हमारे लिए ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए तो बहुत से ऑप्शंस है। लेकिन कहीं भी जा सकते हैं आप अपने खाली समय में, लेकिन आश्रम में जाना, यहाँ आना, अपना सब 8 दिन का समय देकर, तो इसके लिए कुछ तो भी अंदर यह प्रेम है, अपनापन है। आपको रामकृष्ण मिशन अपना लगता है। हमारे लिए आपको छोड़कर और कोई नहीं है, केवल द्रविणम त्वमेव नहीं है, सखा बंधु है और सर्वक सब कुछ आप ही है। उसी प्रकार से आपके लिए भी हम को छोड़कर और कौन है, हम ही सब कुछ है आपके लिए। रामकृष्ण मिशन ही सब कुछ है आपके लिए। ऐसा जितना जितना हो भाव उतना घनिष्ठ होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए माँ आम्ही लोकमान्य चाहिना, देह सुख चाहिना, आम्ही अष्टसिद्धि चाहिना, केवल यही करो कि हमारे शुद्ध भक्ति दो। हम भजनहीन हैं, ज्ञानहीन है, भजन पूजन नहीं, साधनहीन है, माँ हमारे शुद्ध भक्ति दो। जब ठाकुर ने सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं कि हम साधनहीन, भजनहीन है, ज्ञानहीन है, भक्तिहीन है, तो हम हमारे क्या भी साथ है कि नहीं? तो हम तो कह ही सकते, 10 बार कह सकते, 100 बार कह सकते हैं। इसका अर्थ है ना हम ना, जैसे शिवभावे जीव सेवा ये मंत्र है ना, उसी प्रकार से ये जो मंत्र है ना हम तो हो, तो बहुत महामंत्र है ये, सब समय जपना चाहिए। माँ मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ है कि नहीं? इसलिए ये समर्पण का भाव प्रचार प्रसार में बहुत आवश्यक है। ये दोनों एक साथ कहीं है क्या शास्त्र में? नहीं। भगवत गीता का जो उपदेश है
वो 66 पर खत्म हो जाता है। माँ शुचा, अर्जुन शोक मत करो, तुम्हारी सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद का जो श्लोक है 67वां 67th श्लोक, उसमें कहते हैं वो संप्रदाय विधि है, या उसको किसको नहीं कहना चाहिए, तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, सुनना नहीं चाहता है और ईश्वर से असूया में उसको दोष दृष्टि है, ऐसे लोगों को भगवद्वाणी नहीं सुनाना चाहिए। पर किसको सुनाना चाहिए? वो प्रचार है, संप्रदाय विधि है, उसमें भाव है। श्री रामकृष्ण देव ने और माँ ने और स्वामी ने हमको सिखाया क्या है? भाव को छोड़कर। जिसमें भाव नहीं हो कुछ नहीं, विश्वास विश्वास विश्वास, जिस विश्वास है सब कुछ उसके पास है। गीता भी श्रद्धा की बात के, पूरा अध्याय 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग का है, 12वां श्रद्धा की बात कहते हैं। भाव को छोड़कर, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम भावहीन हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। हम थोड़ा सा पीछे से जाएंगे कि 71वां श्लोक है श्रवण का है। शृणुयादपि यो नरः, जो केवल सुनता है, प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, उसको भी शुभ लोकों की प्राप्ति होती है। तेपि चाति तरन्ते व मृत्युम श्रुति प्रायणः, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं वो भी तर जाते हैं, केवल सुनते हैं, लेकिन भगवद्वाणी सुनते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उनसे भी उनको भी तर जाते हैं। दूसरा है अध्ययन। अध्ययन का भी बहुत महत्व है। ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। अर्जुन, मेरा विचार है कि जो मेरी वाणी का अध्ययन करता है वो ज्ञान यज्ञ से मैं पूजा जाता हूँ उसकी ओर से। समय नहीं इसलिए मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, लेकिन जो पहले 2 श्लोक है जो है 68 और 69, वो अभिधास्यति है, सुनाना। सुनाना मतलब प्रचार करना, बताना, दूसरों को बताना। मुझे कुछ मालूम है, आपको बताना चाहता हूँ, उसको प्रचार कहते हैं। प्रसार प्रचार वाणी को अपना कर्तव्य है। संप्रदाय में दूसरों को बताना एक कर्तव्य है, कर्तव्य रूप में है ये। नहीं केवल अपने पास रखना ये नहीं होता है, आगे बढ़ाना उसको। ये परमम गुह्यम, ये इमम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में उसको सुनाता है। उसका फल क्या है? भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः, वो मुझ में पराभक्ति करता है, पराभक्ति करते हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्ति, शुद्ध भक्ति, निष्काम अमला अहेतु की भक्ति श्री रामकृष्ण जिसको कहते हैं, वो पराभक्ति करता है। इसका अर्थ है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, निष्काम अमला अहेतु की भक्ति का वो पालन कर रहा है। और मुझ में आके वाले उसमें कोई संशय नहीं है, मुझसे वो एक रूप हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। उसके बाद कहते न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, उसका मुझे इतना प्रेम, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। न अभी है भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। वो मुझे बहुत प्रिय। थोड़ा समय हो रहा है लेकिन मैं और 2 मिनट लूँगा, समाप्त कर लूँगा। थोड़ा मुझे 2 मिनट। उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि भाव प्रचार का है ना, शंकराचार्य जी ने भक्तिमयी पराकृत्वा में बहुत सुंदर भाष्य किया है। इसके ओर मैं थोड़ा ज़्यादा आकर्षित आपका ध्यान करना चाहता हूँ। भक्तिमयी पराकृत्वा का अर्थ है भगवतः परम गुरो शुश्रूषा। आप जब प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो इसका अर्थ है आपका कुछ नहीं, आप सेवा का शुश्रूषा करते हैं। सेवा जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, बड़ा प्यार से करती है, नर्स करती है हॉस्पिटल में। भगवत भगवान परम गुरु रामकृष्ण देव हमारे परम गुरु, पर गुरु परमेश्वर, सब कुछ हमारे ही इष्ट है। तो परमम गुह्यम, ये वो मद्भक्ते सुविधा ये भगवत परम गुरु शुश्रूषा मया कृतकर्मणि प्रयोग है। मेरे द्वारा भगवान परम गुरु की शुश्रूषा सेवा की जाती है, इसको हम प्रचार कहते हैं। इसमें सब आ गया, सेवा भी आ गई, भाव भी आ गया, प्रचार भी आ गया। अब मैं आपको लेंगे, हमारे पास समय कहाँ है, एक आधा मिनट लूँगा और समाप्त करूँगा। यह लोग कह सकते हैं कि हम तो अभी उम्र हो गई है, हमारी शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति का कुछ क्षय हो गया है,
तो एक स्टडी है, ये स्टडी है, इसका सोर्स है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, और इसका भी कंक्लूजन पढ़ता हूँ. इफ ए पर्सन लीड्स ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, नंबर 1, इज मोबाइल, घूमता फिरता है, हैज़ वाइबल फिजिकल एक्टिविटी and is fully mentally active, intellectual abilities do not, capital letter, decline with age. They simply grow, capital letter, GROW, reaching a peak at the age of 80-90 years. अब तो 89 से तो बहुत दूर है, मैं भी थोड़ा दूर हूँ, है कि नहीं. 80-90 years तक आप बोलते पिंक ऑफ हेल्थ आपने इसके एज फार एज मेंटल capacity is concerned. A peak of human intellectual activity occurs around the age of 70, when the brain begins to work in full force. The director of George Washington University School of Medicine. Among people over the age of 60, you can find many personalities who have just started their creative activities. The brain between the ages of 60 and 80, they are really pink. तो डियर डिवोटीज, आप का अभी जो समय थोड़ा सा इधर करिए, आपका परिवार वगैरह तो सब कुछ है, लेकिन आप परिवार से थोड़ा हटकर आश्रम की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आश्रम में रहते हैं तब आपके आध्यात्मिक विकास के लिए अधिक आपको उसकी मदद मिलती है. और बुद्धकुचे में जनरल सेक्रेटरी महाराज का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ इस सेशन का अध्यक्ष बनाया, और आप सब लोगों का भी बहुत आभारी हूँ, आपने अब तक मेरी वाणी को सुना. भगवत चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि वे हमें सबको, आपको, हमको, उनको उनके श्री चरणों में स्थान दे और भवसागर से पार करा दे. धन्यवाद, नमस्कार.